Hello children, welcome back in Standard 5 English Medium, Subject English Unit 8, Activity 6. Children, we have learned and do activities. We have did all 1 to 5 activities in our previous video. So today we will start our 8th lesson with activity 6. Now in this activity we will learn the present perfect tense. Okay, now let's study. The present perfect tense is formed by using have or has plus the third form past participle of the verb. Children, verb मतलब कि क्रियापद, जो भी क्रियापद है verb उसका थर्ड फॉर्म हमें यहाँ यूज़ करना है. सबसे पहले हमें उसका थर्ड फॉर्म याद करना है. जैसे कि आप देख सकते हो कि गो मतलब जाना, एक उसका मेन वर्ब है. अब उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन. Means go, went and gone. So this third form is called a past participle or a third form. So same like this, all the verbs have three forms. First form main form, the second form is past form, and third form is past participle. We have a look here, like any verb there is one main verb, second is past verb, past form, and third is past participle. Past participle is called a third form, and past form is called a second form. So here, like we have already discussed, the main verb, like go is a main verb. So second form of the go word is went. Go, went. And the third form, past participle form is gone. Correct? Children, we use the past participle tense to talk about an action that was completed at an unspecified or indefinite time in the past. ओके, पास्ट में जो घटना बनी है हमारे विच आर इनडिफिनिट टाइम और अनस्पेसिफाइड टाइम, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब का. एंड फॉर दीज टू शो, to explain the past perfect form, the structure of the sentence remain the subject plus helping verb and plus main verb, third form of main verb, right? Main verb is past participle or a third form of the verb. So there is two verb, like helping verb and main verb is the third form of the verb. Like subject I, helping verb have or has. Here we are using have or has. Two form, have or has. Like when we are using I have gone. Okay, the structure of the sentence is I have gone. So the past participles rules are, when we are using I, you, we or they subject, we are using have word, have helping verb plus past participle verb, third form of the verb. And if there is subject as he, she or it, we are using has. Okay children, जब हम आई यू वी दे का यूज करते हैं जब कर्ता में या सब्जेक्ट में, तब हम हैव का यूज करेंगे एंड द वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. एंड ही सी इट के साथ, हैज के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे. ओके, जैसे हमने बताया पहले कि वर्ब के तीन रूप रहते हैं, तो मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं. जैसे कि I have written a poem. Okay, I have written a poem. So I is subject, have is a helping verb, and written is a third form past participle
form. So this is the pattern of sentence, a poem. So what is the main verb of written? Write. W-R-I-T-E, write. The second form is wrote. And third form is written, which we have written here, right? Write, wrote, written. Okay, so the how is the sentence remain in present perfect tense? I have written a book, or I have written a poem, I have written a story, whatever sentence we are adding after these three. So this, in this pattern, the subject, helping verb and main verb is main thing to remember. Second sentence, we have lost a lot of money. Children, here the subject is we. So I have discussed that when we are using I, you, we or they, we are using have word. So I have, we have. And the third form of the main verb is lost. Lost मतलब gumana. A lot of money. The third form is lot of money. Okay, lost a lot of money. Now, in third sentence, he has bought a beautiful vase. ही सी और इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे. करेक्ट. आई वी यू दे के साथ है और ही सी इट के साथ हैज. सो द सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब हैज एंड द थर्ड फॉर्म इज बोट. तो बोट किसका थर्ड फॉर्म है? बाय का. बाय मतलब खरीदना. बाय second form is bought and third form also remain the bought. Okay, so here we have using this bought word, a beautiful vase. He has bought a beautiful vase. उसने सुंदर वास खरीदा था. जब हम भूत का प्रेजेंट में बट इनडिफिनिट टाइम की बात कर रहे हैं, जो एक घटना पहले बन चुकी है, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा यूज करेंगे. दैट टॉल गर्ल मतलब सी. तो हम इसके साथ क्या करेंगे यूज? यहाँ आई वी यू दे कुछ नहीं है. दैट टॉल गर्ल मतलब सी का यूज है. उसके साथ हम वर्ब यूज करेंगे हैज एंड गॉन टू कैनेडा. सो गॉन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ गो वेंट एंड गॉन. अंडरस्टैंड बच्चों? तो इस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को इस तरह से यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे ग्रामर में. सो नाउ लेट्स डू द एक्टिविटीज. इन योर टेक्स्ट बुक वी हैव गिवन हियर द एक्टिविटीज. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द present perfect form of the verbs given in the brackets. Present perfect form मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट, उसका थर्ड, हमें वर्ब का थर्ड रूप यहाँ पर यूज करना है. तो अब इसका क्या होगा देखते हैं. चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. आई ब्लैंक अ डजन ऑरेंजेस. अभी हमें जो वर्ब यहाँ दिया हुआ है वो है इट. आई ब्लैंक अ डजन ऑरेंजेस. अब इट हमारा मेन वर्ब है, तो आई के साथ हमें क्या रूल के हिसाब से क्या यूज करेंगे? फर्स्ट आई है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैव. HAVE, आई हैव. अभी इट का बन जाएगा ईटन. ईट, एट, ईटन. EATEN. आई हैव ईटन अ डजन ऑरेंजेस. अब सेंटेंस किस तरह से बनेगा? आई हैव ईटन अ डजन ऑरेंजेस. अब इट की जगह पे रहेगा ईटन और यहाँ पर क्या आएगा? हैव और हैज. तो आई के साथ हैव. थर्ड सेकंड में हम देखते हैं द प्लम्बर. ब्लैंक वर्ब है रिपेयर द टेप. प्लम्बर रिपेयर द टेप्स. टेप मतलब नल. प्लम्बर ने नल जो है वो ठीक किया. किस तरह से किया? रिपेयर. अभी प्लम्बर जो है वो ही सी इट में रहेगा. करेक्ट. प्लम्बर मतलब यहाँ कोई आई वी यू दे नहीं है, वर्ड यूज हुआ. थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर. तो ये है प्लम्बर मतलब ही के साथ हम यूज करेंगे हैज. ही हैज. रिपेयर का थर्ड फॉर्म होगा रिपेयर्ड. REPAIRED. रिपेयर्ड द टैप्स. So the sentence remain, the plumber has repaired the taps. Third,
The cobbler mend my shoes. अभी mend, cobbler, again the same like the plumber. The cobbler is a he. Okay, so plumber यानी cobbler. Cobbler has, अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? he cobbler मतलब ही तो has mend my shoes. उसने मेरे शूज ठीक किए, cobbler ने. ओके, कोबलर ने मेरे शूज ठीक किए. तो मेंड का मेंडेड, MENDED रहेगा. ईडी लग जाएगा थर्ड फॉर्म में हमारे. फोर्थ, माई फ्रेंड्स कलेक्ट ऑल द ड्राई लीव्स. माई फ्रेंड्स, नाउ हियर दे. ओके, एक फ्रेंड की बात नहीं हुई, ये सेकंड फर्स्ट पर्सन. आई का माई, जैसे उसका सेकंड पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. माई ये होगा माई फ्रेंड्स, मतलब दे हो जाएगा. थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा ये. ओके, माई फ्रेंड्स कलेक्टेड. तो हम यहाँ पर दे यूज, आई वी यू दे के साथ हम यूज करेंगे हैव. आई हैव, कलेक्ट का हो जाएगा कलेक्टेड, COLLECTED. माई फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड ऑल द ड्राई लीव्स. अब यहाँ पर दे यूज है. देखिए यहाँ पर एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है. माई फ्रेंड, इट इज अ माई फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी हैव यूजिंग हैव. ओके, ये प्लूरल फॉर्म में. तो हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी हमारे पर्सन है उसमें प्लूरल में हम हैव का यूज करेंगे. अभी दे, अगेन द प्लूरल, दे put them in a heap. The gardener will take them away. Okay, तो अब यहाँ पर have यूज होगा. they है तो they have. Now children, put एक ऐसा वर्ड है कि उसके तीनों रूप एक जैसे ही होंगे. put, चाहे वो मैन हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो. तो they have put, तो उसका जो फॉर्म है वो सेम टू सेम रहेगा. they have put them in a heap. The gardener will take them away. Now in sixth sentence, my friend. अब यहाँ पर my friend, यहाँ पर my friends था, ये my friend सिंगुलर हो गया ये my friend. अब एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे? has. my friend has. बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, BOUGHT. माई फ्रेंड हैज बॉट अ गैस बलून. ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. नाउ कम टू द एक्टिविटी 7. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेशल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. हमें यहाँ पर फ्रेशल वर्ब्स दिए हुए हैं, उससे हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. सो द फ्रेशल वर्ब्स आर गो ऑफ, गो अप, गो डाउन, गो अवे, गो अलोंग. ये 1 2 3 4 5 दिए और हमारे पास ब्लैंक भी 5 है. इसका यूज कैसे करेंगे? चाणक्य हैज गो ऑफ इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेट्स मैन. यहां पर क्या वर्ड होगा? गो. अब गो ऑफ तो नहीं रहेगा, तो जैसे हमने देखा अभी गो ऑफ तो इस सेंटेंस के साथ नहीं आएगा. तो इनमें से कौन सा आएगा? यहाँ देख के हमें फर्स्ट लगा नहीं लेना है, ठीक है. तो अब इनमें से हम चूज करें गो ऑफ. जैसे अभी पढ़ा तो वो नहीं लगा, ठीक. गो ऑफ, गो अप, नो, गो डाउन. सो चाणक्य हैज गो डाउन इन हिस्ट्री हैज अ ग्रेट स्टेटमेंट. डाउन हमने क्यों यूज किया? डाउन मतलब पीछे जाना. ओके, चाणक्य मतलब टू मूव. चाणक्य हिस्ट्री में एज अ ग्रेट स्टेटमेंट के एज अ ग्रेट स्टेटमेंट तरीके वो गो डाउन हो गए, वहां चले गए. कहाँ चले गए? वो हिस्ट्री में चले गए. ये दिखा रहे यहाँ से फ्रेशल वर्ड्स. सो चाणक्य हैज गो डाउन, हिस्ट्री में बहुत पीछे चले गए ना चाणक्य, इसलिए गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेट्समैन. Now second, my neighbors have blank for a few weeks to the hills. My neighbors have blank for a few weeks to the hills. यहाँ पर वर्ड होगा gone away.
मीन्स गो अवे, गो का क्या हो जाएगा, गॉन अवे, ओके, गॉन अवे, यहां पर भी हो जाएगा गॉन, हम गो का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, गॉन, तो गॉन अवे, गॉन अवे, माई नेबर्स हैज गॉन अवे फॉर अ फ्यू वीक्स टू द हिल्स, वो गए थे, ओके, चले गए थे, वी हैव गॉन, हमने देखा था कि हैव एस के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यहां पर हमें जो दिया हुआ है वर्ब उसका हमें थर्ड फॉर्म यानी गो का गोन हो जाएगा, गोन अवे फॉर अ फ्यू वीक्स टू द हिल, कुछ हफ्तों के लिए वो हिल्स पर गए। यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट बट यू विल हैव फाइंड इट इजियर एज यू गो अलोंग, ओके। अब यहां पर देखिए, यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट, पहले आपको यू मे हैव सम डिफिकल्टी, आपको कुछ डिफिकल्टी रहेगी, बट यू विल फाइंड इट इजियर एज यू, अब यहां पर विल का यूज हुआ है, विल यानी फ्यूचर का यूज हुआ है, तो फ्यूचर के साथ हम एज इट इज वर्ड यूज करेंगे, गो अलोंग, ओके, गो अलोंग, इजियर एज यू गो अलोंग, गो अलोंग मतलब एक उसके साथ जाएंगे। अब यहां पर हमें गो का मेन वर्ब यूज करेंगे एंड अलोंग यूज करेंगे, हैव और हैज होगा तो ही हम उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज सेकंड। नाउ फोर्थ सेंटेंस, द गन by accident but fortunately no one was injured, the gun went off, गो का क्या हो जाए, क्योंकि यहां पर देखिए हमें पहले ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो किस सेंटेंस में यूज हुआ है। ऊपर हमने देखा था जैसे हैज था मतलब कि ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये भी हैव था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, और ये जो हमने यूज किया यहाँ पर फ्यूचर का यूज हुआ है। बट द गन, अब यहाँ जो भी है वर्ड लाइक कि ऑफ, वेंट ऑफ, अब यहाँ पर होगा वेंट, वेंट गो का सेकंड रूप हो जाएगा वेंट ऑफ। अब हम इसको कैसे, क्योंकि अब यहाँ पर हमने गो का सेकंड फॉर्म यूज किया, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो इंजर्ड, द गन वेंट ऑफ बाय एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इंजर्ड, गन चली थी, एक्सीडेंटली गन चली थी, ओके, बट फॉर्चुनेटली कोई उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, मतलब ये पास्ट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। नाउ द थर्ड सेंटेंस ही, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज, नाउ यहाँ पर हैज है तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, गो, गॉन, गो का क्या वर्ड होगा, गॉन और अप यानी इंक्रीज होना, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप, बढ़ जाना, अप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 8, वर्क इन पेयर्स, डिजाइन अ commemorative stamp for S. Ramanujan and talk about your design. Later prepare a collage of all commemorative stamps and display it on the bulletin board. Commemorate का मतलब है उनको इनकी याद में, ओके, तो हमें पैर में वर्क करना है और एक डिज़ाइन बनाना है, एक स्टैम्प एस रामानुजन का, और उनके बारे में हमें बात करनी है, एंड लेटर एक कोलाज वर्क उनके याद में हमें स्टैम्प में बनाना है एंड डिस्प्ले इट इन अ बुलेटिन बोर्ड पर करना है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 9. In this activity we have given here a puzzle time. हमें यहाँ एक पजल टाइम दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, पुट द नंबर्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है पुट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन द सर्कल्स, यहाँ जो सर्कल्स दिए उसमें वो नंबर डालने 1 to 7, सो दैट ईच स्ट्रेट लाइन ऑफ 3 नंबर्स एडेड अप टू द सेम टोटल, उसमें सेम टोटल आ जाए, इस तरह से हमें 1 to 7 नंबर्स को डालना है। तो अभी कैसे करेंगे हम देखते हैं, चलिए इसको किस तरह से, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी फॉर्म children, this is a very too tricky and no wonder there were several different ways of doing it. It's amazing, na? But you could have
a 7 in the middle. For this tricky word, first remember this thing. Okay, but you could have 7 in the middle or you can put a 4 or 1. आपको इन तीन में से कोई एक को यहाँ 7, 1 या तो 4 को रखना है यहाँ, and then we can solve it. So first let's try it. हम यहाँ पर अगर 7 को रख दें, यहाँ पर सेंटर में हम 7 को, यहाँ सेंटर में हमने 7 को रख दिया. अब हम सारे नंबर को किस तरह से लगाएंगे कि उनका एक एक करके आंसर जो है वो लाइन का सेम हो जाए. अब हम 7 को जिनके साथ ऐड करते जाएंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 14. ओके, अब किस तरह से, जैसे हमने यहाँ 7 लगाया और यहाँ पर हम लगाए अगर 1, यहाँ इस बॉक्स में 1 और यहाँ पर अभी हमें और एक 7 चाहिए. अब आप सोचिए हमें टोटल 7 नंबर 14 करना है, तो यहाँ पर 7 और 1 यहाँ पर है 8. तो अब यहाँ पर अगर 6 को डाल देंगे हम तो 1 6 7 एंड 7 + 7 14, तो इस लाइन का 14 हो गया. अब हमारे पास यहाँ 7 है, तो अब हम किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 3 and 4 7, अगेन 7 3 4 7 and 7 become 14, अगेन द टोटल नंबर 14. ये भी हो गया, इन दोनों का भी 14 हो गया. अब बची ये लाइन हमारी. अब यहाँ पर से अब इसको 7 हम किस तरह से कर सकते हैं, लाइक 2 and 5, 7 2 5 7 and 7 14. Now it's become totally solved puzzle, right? So आप इस तरह से अब 1 का यूज़ करके भी कर सकते हैं एंड 4 का यूज़ करके भी कर सकते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में ये इसी तरह से सोल्व करके यहाँ दिया हुआ है. ओके, I expect you found this one not too tricky and no wonder. There were several different ways to doing it. राइट, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू द एक्टिविटी 10. Organize a science exhibition with experiments in your class during one of your activity period. Invite the other classes and let your principal, madam, sir rank the best project mathematical puzzles to can be exhibited. बच्चों, जिस तरह से हम every year 28 फरवरी को हम जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपना साइंस एग्जीबिशन, इसी तरह से हम मैथमेटिक्स का भी कर सकते हैं और इसका प्रोजेक्ट बना के हम इसको एग्जीबिशन कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स वी हैव फिनिश्ड हियर आवर चैप्टर यूनिट 8 here. Do practice and read this sentence. Till then, bye bye.